Children, so let us start. Today we will discuss, okay, children, periodic properties. Okay, periodic properties. Okay, children, periodic properties. So, okay, children. Okay, so I have already discussed about what is periodic property, which is generated, regenerated, okay, reappears. Properties reappears, after regular intervals. Such type of properties are known as periodic property. Regular interval. Okay, regular interval, okay, is something related with periods. Time period, okay, regular interval. So some of the important properties are, children. Number one, okay, let us write one by one. Okay, first of all, atomic size, and number two, okay, we'll go for ionization energy. Everything I will write in detail, don't worry. 3, ionization, then electron affinity, okay, and number 4, electronegativity, and number 5, okay, we can go for valency, okay, number 6, what we can go, everything is happened, metallic nature, number 7, okay, so see, this periodic property generally depends upon, I will write one note over here, children, note, okay, these all properties depends upon, okay, the main thing is that it depends upon depends on electronic configuration, EC, electronic configuration, okay, electronic configuration. So in that, we can say atomic size, ionization energy, atomic size and ionic size, okay, both we will discuss, okay, then electron affinity, it is related with electron gain enthalpy, children, enthalpy, electron gain enthalpy, okay. I will rewrite again it, this spelling, don't worry about. Then this is electronegativity, electronegativity, okay.
And next one is valency, children. Okay, valency. Just small information. Valency means ability to uh, ability to form number of bonds. I will discuss what is this bond in chemical bonding. Don't worry. So this is known as valency. Everything I will explain. Just it is an introduction part. Okay. Then metallic nature. You know metallic nature means electropositive nature. Means electropositive nature. Some elements are there. They are very happy to lose electrons. Okay. So generally they are known as metals. We'll discuss each and everything. Don't get panic. Okay. Then some properties are there like okay, effective screening effect. Okay, screening effect you can write, or you can write SHIELDING, shielding effect, children. Shielding effect. Okay, I will tell you what it is. In short, we will write SE. Next one is okay, ENC. Children, this is known as effective nuclear charge. Effective nuclear charge. Then of course nuclear charge, NC, nuclear charge. Okay, children. So these some properties are there. Not only this, some is oxidation number. Oxidation number. Oxidation number means idea about number of electron lost, okay, or number of electron gained, okay, or shared also. SHARED, shared. Number of electron lost, gained, or shared. This very important property, oxidation number. Everything I will explain. And whenever particle lost or gained or share means they are involved in joining with another atom. Okay, chemical bond. Technical name is chemical bond. Everything I will explain. Just keep on noting down and just raise hand whenever you have any problem. Okay, then next one is okay, oxidation number. You can write like this also. Net charge on particle. Net charge, not total charge. Net charge on particle. Chemistry is a study of particles only, children. Any property related to particles. Okay. Next one is okay. Next one is you should write oxidizing agent and reducing agent. This is also means all are periodic properties, children. I will explain. Just I'm mentioning what we have to discuss. Okay. So see, these are some periodic properties, children. Okay. These properties will reappears. Okay. Okay. Once again, what about my disabled particles? Then my hide videos. Where is this? What happened? Hide video panels. Okay. First hide video panels, then show video panels. And show video panel means why my voice is show video panels. Show video panel.
Okay, children. Right. Okay. So these properties, see, there are 118 atoms, children. 118 atoms. So we arrange them according to atomic number. These all properties are redeveloping. Redeveloping. It is coming again and again after a regular interval. That's why it is known as periodic properties. And that concept you have to develop. I will help you. I will help you a lot regarding. I will make you feel every property. I will make you feel every property, okay? So oxidizing agent, reducing, what they are, I will explain everything, right? 12th number, that is known as acidic and basic nature, okay? These are also in form of periodic only. 13, in 13 what we can do, we can have okay, and there are many property which do not depend upon this periodic, they are not periodic function. Many properties are there, okay? So you can make a note of it also, okay? There are so many properties which are not periodic function, okay? Every property is not periodic function, children. Suppose somebody asks you, okay, suppose specific heat is specific heat. So it is not a periodic function, specific heat, okay? I will tell you what is a specific heat, but it is not a periodic function. In same way, one more information is there that is known as refractive index. Refractive index. Index. They are not periodic function, beta. They are not periodic function. Okay, because they don't depend upon this thing. Colors. Okay. Colors are not periodic functions. Okay, because they do not depend upon, they are not periodic functions. We can't say that these colors will reappear. Colors will reappear, okay? There may be some role of electrons, but not periodic function. So I think now you are very clear. Okay, so let us move forward. So one by one we will discuss, children, one by one. So let us go up first about atomic radius, children. Okay, atomic radius. Atomic radius, or we can say atomic size also. And in brief, you should know that we consider, okay, for sake of simplicity, we consider atoms as spherical in shape, children. Spherical in shape, we consider like this for sake of simplicity. Then when time will come, I will tell that different shapes are there. But shapes of molecules, generally we consider atom as spherical. Spherical. Okay, it is better to feel that atoms are spherical. Okay, so if they are spherical, okay, then definitely if atomic radius, let me explain everything. First, let me complete the writing work. Then if you have any doubt, okay, you can ask me. I will unmute everybody so that you can ask me, okay? So I have unmuted everybody, okay, children? If you have any problem, then and there you can ask me, okay? So atomic size or atomic radius, children, okay? Before that, children, before that, already I have repeated in previous class also. Before atomic radius, uh, I will write here some small information, okay, children?
that information is, it will give you relaxation. Okay, what relaxation? See, element coming at intervals of one information is there, children. See, what I wanted to tell you actually in the first period, children. Period first. Can you tell me how many elements are there in period first? Can anybody help me, children? Astha, Yes, sir. how many members are there in period one? Sir, it is in period 1 there is only hydrogen and helium, so there is only 2. Two elements. Okay, two elements. Two type of atoms with two elements. Okay, good. Yes. Period two. In second period, can you tell me how many members are there? Sir, 8. 8. Very nice. Very nice. Good answer. Can you tell me in period period 3, third period? I think in third period also Sir, 8 members only. 8, yes. Okay. Yes. You can see that. I will just. Where are they? Where is that one? Like this, children. So we can say that in third period also 8 members. Okay. If you know their names, it will be more. It will be better. Okay. It will be better. Yes. So yesterday, Yes, yesterday I have given you the total periodic description. Okay. So from there you can know the names, numbers, and everything. Fourth period. Fourth period. We have an idea. So 2L from S, 8 from P, and inside 10 members are there from fourth period. So nearly how many members can be there? I think. Any objection? Just let me know. Okay, I will explain it. I will explain. Any objection? Okay. Any objection? In fifth period. In fifth period also, I think the members are 18 only. Okay. And then sixth period. You know how many atoms are there? Add 14 elements more. Add 14. 18 is compulsory and 14 extra. 8, 9, 10 to 32. So we can write that 32 members are there. Okay. And in seventh period also, I think 32, which are maximum of them are artificial. Okay, Astha? Yes, sir. Any classes going simultaneously with you, sir? Beta? No, sir. I think some sound is coming. Okay, just any participant, if you have this thing background noise, please, my humble request, unmute yourself. Anyhow, Astha, count total number of atoms, total number of elements, atoms and elements. I am telling regularly same thing. Okay, different type of atoms. Each atom is the resembling the element. Just you count it, how much it is. 2, 2, 4, then I think 10, 12 and 20, 28, 28 and 2. I think it is 30 and 38. 3 is in our hand. 3, 6, 9, 10, 11. So don't you think that we have complete
biodata means complete data of Yes. 180 Yes, sir. atoms. Okay, children? Yes, sir. Okay. If you remember their names and all, that will be more beneficial for you. Anyhow, let us move to the atomic radius, children. Okay. So we'll move one by one. Okay, children. So atomic radius. Atomic radius. So what we can write, any point about atomic radius? Okay. So in atom, the electron cloud around the nucleus extend to infinity. Okay. So this is a very big problem. If this is the nucleus, children, so we don't know where is the last electron. Okay, because uh, I will be frank enough to say that electrons, okay, have in coming time you will understand that wave character, wave nature. Okay, wave nature. Don't get panic. But electrons resembles like wave character, and if it is wave, we don't know where is that electron the waves move up to. So general one concept, practically it is not there. We will do something to find out where is that electron. Okay, children? But in normal ways we can say that we don't know where is the electron. Okay, where is that electron? We really don't know, because electron is in exists in form of cloud. Okay, electron is in form of wave, so it is infinite. It is infinite, children. So we can say that electron cloud. See, I am using one word, CLOUD, cloud. What do you mean by cloud, children? क्या बोलते हैं cloud? Cloud का Sir, मतलब cloud as we sir, जनरल वे sir, में बादल. बादल. ओके, तो इलेक्ट्रॉन ना बादल जैसा रहता है, तो उसको साइंटिफिक नेम है इलेक्ट्रॉन क्लाउड. अब ना थोड़ा स्टैंडर्ड आना चाहिए केमिस्ट्री में. तो खाली इलेक्ट्रॉन बोलने से मजा नहीं आएगा, बोलो इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ओके, तो टेंशन की बात नहीं है. कोई परेशानी है तो बोल दो, नहीं तो हम लोग खाली यूज करेंगे इलेक्ट्रॉन. हेलो आस्था? यस सर. हाँ, मैं उसमें थोड़ा नॉलेज को अपग्रेड करना चाह रहा हूँ, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलोगे तो बेटर होगा. आपको एक वीक में 2 वीक में समझ में आएगा कि व्हाई आई एम टेलिंग देम एज इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ओके, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. तो वी रियली डोंट नो द इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सटेंड्स okay, to infinite to infinity. This is the real. So sometime in any competitive question it may come, children. So this information is very important, and because of this only it is very difficult to find out the atomic radius, children. It is very simple. It is very simple to say that this is the nucleus and this is the outermost electron and this is the radius. But try to understand what I am telling. The electron is in form of wave and it extends to infinity. This is one primary information. So for what will happen if such thing is happening? I have unmuted everybody, beta. You can ask. Unmuted everybody. Okay. Fatima, do you want to tell anything? नो सर, वो गलती से हो गया. ओके बेटा, ओके, कोई बात नहीं. सो नेक्स्ट थिंग इज है, ठीक है, चलो एक चीज लिख लो. क्या है ये एटॉमिक रेडियस? क्या है एटॉमिक रेडियस को बेटा शॉर्ट फॉर्म में देखो, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्मॉल आर. तो मैं आर लिखूंगा, आप उसको क्या पढ़ोगे? स्मॉल आर मींस एटॉमिक रेडियस. हाँ, ऐसा समझ के चलना है. आर का बहुत सारा मतलब हो सकता है,
लेकिन एट प्रेजेंट सिनेरियो में आर का मतलब एटॉमिक रेडियस। सो व्हाट इज आर, तो हम लोग लिखेंगे जिससे कि ना लिखना कम हो, मेरा कहने का मतलब ये है। सो आर इज, ओके, आर इज द डिस्टेंस, आर इज द डिस्टेंस। ये वाला चीज हम लोग लिखने जा रहे हैं कि भैया ये एटॉमिक रेडियस क्या है। पता तो नहीं है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, लेकिन देखो फिर भी हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, पता करके छोड़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन है कहाँ। तो एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज तो एक ही है, तो एटॉमिक साइज भी आर लिख सकते हैं ना। हाँ, तो मतलब देखो कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक साइज को हम लोग, एटॉमिक साइज मतलब एटम कितना बड़ा है, तो एटम कितना बड़ा है तो बताओगे कैसे, बताओगे कैसे कि उसका साइज छोटा है या बड़ा है, तो रेडियस से ही ना पता चलेगा। यस सर। तो अब एटॉमिक साइज को रिप्रेजेंट करते हैं एटॉमिक रेडियस से, तो अब हम लोग रेडियस, जिसका रेडियस छोटा होगा वो छोटा एटम होगा, जिसका रेडियस बड़ा होगा वो बड़ा एटम होगा। समझ में आई बड़ा बात? है। यस सर। हाँ, तो कोई भी डाउट होने से हमसे पूछा करो। एक जन और रेज हैंड किया है, फिर थैंक यू फातिमा। ओके, सी, so r is the distance, okay, r is the distance, okay, distance between, हमको तो बिटवीन भी ना शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मन करता है, बी ऐसा करके, समझ गए बात को? पूरा स्पेलिंग लिखने का मन ही नहीं करता है, हमको भी आदत पड़ गया साइंस केमिस्ट्री का ना। केमिस्ट्री में हर बड़ी चीज को शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं बेटा, ये हमेशा याद रखना, बचपन से ही सिखा देते हैं। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं? H2। अच्छा, एच लिखते हैं, एच। हाँ वही। हाँ 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 हाँ, वही वही वही। तो एटम की बात कर रहे हैं ना, एटम, तो आपने मॉलिक्यूल बोला है, ओके। H2 is a molecule, okay, and I am telling about atom. कोई बात नहीं, आप मेरे से बात करते जाओगे ना, मैं आपको करेक्ट करते जाऊंगा, तो आपका एकदम नॉलेज एकदम बढ़ते जाएगा, एकदम नॉलेज बढ़ते जाएगा। आप खाली हमसे बात करते जाइए बस। ओके। तो हाँ, तो R is the R, so R is the distance between, और मैं किसी को बताऊंगा भी नहीं कि किसने क्या मिस्टेक किया, ओके। आई एम ट्रीटिंग लाइक ए डॉक्टर। डॉक्टर के पास कितने पेशेंट आते हैं, क्या वो बोलते रहता है क्या किसको क्या हुआ, किसको क्या हुआ? नहीं बोलता है। So some what we say, some protocol is there. So this is a conversation between a teacher and a student, and I am transferring my knowledge, whatever I know about chemistry, to you. And in that way, sometime you may be wrong, sometime I may be also wrong. Children, I am not, everybody is 100% correct. Nobody can tell like this, okay? So even I can do mistake. So you have total right to correct me also, and I have total right to correct you also. Anyhow, R is the distance between. R is the distance between what? Between, see, center of nucleus, okay, center of a nucleus, center of a nucleus, and the electron cloud of the outermost energy level, yeah, outermost orbit, okay children, did you understand children? Any objection in the definition, please let me know. And if you want to update, so instead of orbit you can use, I am telling you, you can use energy levels. Orbit is nothing, it is energy levels. So you can define like this: R is the distance between center of a nucleus and the electron cloud of the outermost energy levels. Okay.
तो अब एकदम अच्छा अच्छा का पसीना एकदम निकल जाएगा। बाप रे क्या लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो। सो एनी हाउ, क्योंकि ऑर्बिट आजकल जनरली बच्चे बच्चे जानने लग गए, 10th के बच्चे 9th के बच्चे जानने लगे, ऑर्बिट 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 करने लग गए। हालांकि उन लोग को ज्यादा नहीं मालूम है, बस उन लोग को यही मालूम है के एल एम वगैरह वगैरह। बस वो ऑर्बिट को हटा के एनर्जी लेवल लगा दो, बस उन लोग का पूरा पूरा उड़ जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम रखना है कि ऑर्बिट और एनर्जी लेवल दोनों चीज क्या है बेटा? सेम है। सेम है, सेम है। वेरी नाइस। इस तरह से लिंक, और किसी को मत बताना, अपने पास दिमाग में रखना बस ये, ठीक है? मालूम है एक चीज, अगर ये एनर्जी लेवल है तो हर ऑर्बिट का कुछ ना कुछ एनर्जी होगा कि नहीं? हेलो, हम क्या बोले सुना? सर ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा। अभी क्लियर करते हैं बेटा, बताते रहो। हेलो चेक, माइक चेक, नेटवर्क चेक, ये सब बहुत प्रॉब्लम, आजकल नेटवर्क बहुत यूज हो रहा है ना। मैम थोड़ा रिचार्ज कर दोगे आप? बेटा आवाज आया क्या? देखो तो बेटा एक ना अच्छा सा ये देखो ना प्लान, कुछ फायदा हो क्या क्या प्लान लेने से, या डेली डेली करने से ही ठीक है? प्लान लेने से ठीक है ना? चलो अभी तो खाली टेम्पोररी कर दो, फिर हम एक प्लान ले लेंगे। ओके चलो बेटा, आवाज आया बेटा? हाँ सर अभी आए। ओके ठीक है। तो अब देखिए, हाँ मैं क्या बोलने जा रहा था मालूम है? एवरी ऑर्बिट इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, और हम लोग का काम होगा, हम लोग आगे जाकर के देखेंगे कि कैसे एनर्जी निकालते हैं। ओके, क्योंकि सारा खेल, चाहे हम बता रहे हैं ना केमिस्ट्री में, सारा खेल किसका है बेटा मालूम है? एनर्जी का। हम लोग को एनर्जी चाहिए, बस हम लोग को एनर्जी चाहिए, बीइंग ए ह्यूमन बीइंग एनर्जी चाहिए खूब सारा, पंखा चलाने के लिए, एसी चलाने के लिए, कार चलाने के लिए, और कुछ मशीन चलाने के लिए, सब चीज के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए, सोशल गैदरिंग के लिए, फाइट करने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। और वो एनर्जी आएगा केमिस्ट्री से। एनर्जी कहाँ से आएगा बेटा? हेलो बेटा, यस सर। कहीं से भी तुम कोई भी एनर्जी बता दो, हम बता देंगे वो केमिस्ट्री से आ रहा है। कोई भी एनर्जी बोलो। सर जैसे कि कोई भी एनर्जी हम बता रहे हैं ना, चाहे वो हम खाना खा रहे हैं, फिर हम काम कर रहे हैं, एनर्जी आ रहा है कि नहीं मेरे में? स्पोर्ट्स के लिए भी एनर्जी चाहिए होता सब है। चाहिए, सब, वो सब चीज वो मैटर है ना। जो भी जहाँ फोर्स लगा रहा है वो मास यूज हो रहा है कि नहीं? यस सर। तो मास, मास मतलब मैटर, मैटर मतलब इट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल, तो उसमें एटम एंड मॉलिक्यूल्स है कि नहीं? बिल्कुल है। एकदम, कोई नहीं बोल सकता कि एनर्जी केमिस्ट्री से छूटा हुआ है, या यूं समझिए एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम केमिस्ट्री, एकदम हमेशा याद रखना। तो कैसे एनर्जी व एनर्जी कैलकुलेट करेंगे सब बताएंगे। ये सारा खेल जितना भी हम आपको बता रहे हैं, ये एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए लिया जा रहा है, और ये पता करने के लिए किया जा रहा है कि कौन सा पार्टिकल हमें कितना एनर्जी दे सकता है। और पूरे वर्ल्ड में अगर जो कोई कंपटीशन चल रहा है तो वो केवल एनर्जी के लिए चल रहा है, केवल एनर्जी। अमेरिका बोल रहा है मेरे पास एनर्जी ज्यादा है, चाइना बोल रहा है मेरे पास ज्यादा है, रूस बोल रहा है मेरे पास ज्यादा है, इसलिए एनर्जी, केमिस्ट्री इज प्लेइंग ए इंपॉर्टेंट रोल। तो आने वाले समय में जिसका केमिस्ट्री स्ट्रांग रहेगा उसके पास बहुत एनर्जी रहेगा। तो एनी हाउ हम बताएंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अभी तक तो खाली अभी हम लोग रेडियस की बात कर रहे हैं। ओके अच्छा, आप बताओ टेक्निकल चीज बताओ, क्या हम लोग एक एटम का रेडियस इतना इजीली निकाल पाएंगे क्या? क्योंकि क्या प्रॉब्लम आ रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज इनफिनिट। हाँ, तो पता कैसे एक्सटेंड्स टू चलेगा? इनफिनिट। तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा कहाँ है कैसे? तब पता, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पता चले तब तो हम निकाल ले रेडियस।
Yes, sir. हाँ, तो अब देखो उसको निकालने का कैसा कैसा Third तरीका, one. बोलो बोलो बेटा बोलो। ठीक है, ओके। तो एटॉमिक रेडियस कैन नॉट बी डेटन डायरेक्टली। ओके, सो रेडियस अगर आप डायरेक्टली मेजर करना चाहते हैं, आर डायरेक्टली मेजर, इफ यू वांट टू measure directly atomic radius, battery is low in my system, so now I have to connect it. Okay, and I have to connect with this also. आर डायरेक्टली मेजर करना चाहते हो, इफ यू विश, क्या कैसे लिखे, कहां से लिखे, आर वर्ड कैसा हो जाने से अच्छा रहेगा, आर कैनॉट बी डायरेक्टली मेजर, आर यहां वर्ड लगा देते हैं, कैनॉट बी डायरेक्टली मेजर्ड, ये एक सेंटेंस अच्छा लगा। ओके, तो ठीक है, डायरेक्टली नहीं मेजर करेंगे तो फिर करेंगे कैसे? तो उसके लिए हम लोग बहुत सारे मेथड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों, बहुत सारे मेथड्स का, ठीक है। लेकिन आपको ये रीजन मालूम होना चाहिए कि हम डायरेक्टली क्यों नहीं मेजर कर सकते हैं। ओके बेटा, तो सबसे पहले तो हमें ना इंफॉर्मेशन चाहिए, मालूम है डायरेक्टली तो नहीं मेजर कर पाएंगे, तो हमको अगर इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मालूम हो जाएगा तो कुछ बात बन सकती है, तो आई कैन बिकम हैप्पी, ये एक चांस, एक ऑप्शन मिला, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, जिसको हम लोग ना क्या बोलेंगे मालूम, क्या बेटा? ओके, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस मालूम होने से कुछ आइडिया हम लोग लगाएंगे। फिर और क्या हो सकता है, और ये जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है बेटा, ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, रुको एक काम करते हैं, थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लेते हैं। पहला बात तो डायरेक्टली पता नहीं होगा, और अगर डायरेक्टली पता नहीं होगा तो कैसे होगा, कहते हैं इंटर मतलब दो एटम के बीच का डिस्टेंस पता लगना चाहिए, और वो कैसे पता लगेगा मालूम है, एक टेक्निक है हम लोग के पास में, और उसका नाम है, ओके, बहुत सारा टेक्निक्स है, बहुत सारा, एक है एक्स रेज डिफ्रैक्शन मेथड, एक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। ये मेथड कैसे काम करेगा ये अभी हम आपको नहीं समझाएंगे, ये जब आप हायर लेवल पे इंजीनियरिंग वगैरह में जाएंगे, हम फॉर्मूला वगैरह भी दे सकते हैं, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल जब करने जाओगे तब तो आपको अच्छे, मतलब या तो अगर इंजीनियरिंग में जा रहे हो तो अच्छे आईआईटी में जाना पड़ेगा, अच्छे एनआईटी में जाना पड़ेगा, वहां पर मशीन सब है, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का, एक्सरे डिफ्रैक्शन का, तो जो आज आप पढ़ रहे हो वहां उस दिन एकदम और फील करोगे, एकदम लाइव एग्जांपल देखोगे, इतना खुशी मिलेगा ना आपको कि मैं क्या बोलूं आपको, ठीक है। एनी हाउ, तो एक्सरे डिफ्रैक्शन हो गया, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड हो गया, उसी तरह से ये सब और कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी भी आया होगा कुछ नापने का, लेकिन अल्टीमेटली हमको इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस चाहिए बेटा। देखो उससे फायदा क्या होगा हम बता देते हैं आपको, एंड तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये जो एटॉमिक रेडियस है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, तो हमको ये मालूम रहना पड़ेगा कि वो जो दो एटम का जो न्यूक्लियस है, या दो एटम है,
वो आपस में कैसे बॉन्डेड है। बॉन्डेड एक चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, जिसको हम अच्छा से समझाएंगे, लेकिन अभी उसका हल्का सा इस्तेमाल हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो आर होता है बेटा, एटॉमिक रेडियस, ठीक है, वो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, तो क्या क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है वो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, डी पे डिपेंड कर रहा है, डी पे, डी इज इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, वहां लिखा हुआ देखो। अच्छा, तो और ये डी किस पे डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे। ये सब नोट सब बना बना के लिखो, हम एक एक चीज समझाएंगे। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ठीक है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। अब नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है बेटा, तो नेचर ऑफ बॉन्डिंग के लिए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। नेचर ऑफ बॉन्डिंग, ये देखो, नेचर ऑफ बॉन्डिंग मतलब ये देखो कि भाई वो मेटेलिक बॉन्ड है, ठीक है, या हाँ, या वो कोवेलेंट बॉन्ड है, ठीक है, या वो वांडरवाल बॉन्ड है, वांडरवाल्स बॉन्ड, ओके। इस तरह से ETC, अभी मैंने पूरी बात नहीं खत्म की है, ETC स्कोप छोड़ के रखा है मैंने, लेकिन एनी हाउ नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करेगा कि वो दो पार्टिकल मेटेलिक बॉन्ड पे अटैच है या कोवेलेंट बॉन्ड, वांडर बॉन्ड, ओके, लाइक दिस, आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ETC, बहुत सारा स्कोप है बेटा, बहुत सारा। आप खाली अभी आप टर्म्स सब देखते जाइए, एकदम ना लिखते जाइए एकदम, ये जो जितने भी टर्म्स मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, इन टर्म्स को ध्यान में रखते जाइए कि ये सारे टर्म्स हैं, इनके बारे में बढ़िया जानना है, एकदम सर से पूछना है, पीछे नहीं छोड़ना है सर को, एकदम पीछे पड़े रहना है कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या, सब समझाएंगे, क्योंकि हम ही तो आपको बता रहे हैं कि ये सारे टर्म्स हैं। तो एनी हाउ, ठीक है, तो और एक बात है बेटा बच्चों, आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, आप लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन है कि नहीं? हाँ सर है। कौन ज्वाइन नहीं है, हाथ उठाओ तो, कौन ज्वाइन नहीं है, ज्वाइन हो जाओ बेटा, सर ग्रुप में दोनों ज्वाइन हो ना, तो आप लोग हाँ सर। आवाज स्पीकर के सामने रख के बोलो बेटा, हमको सुनाई नहीं दे रहा। हाँ सर मैं ज्वाइन हूँ। हाँ ठीक है, तो उससे क्या होगा ना, मैं बाकी, हाँ बाकी जो क्लास के लेक्चर्स हैं उसको डेट वाइज देखो, कितना अच्छा लगेगा आपको समझने में। फिर एक बार रीडिंग कर लो, कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन वही चीज हम आपसे फिर दोबारा रिपीट करेंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आते जाएगा कि हाँ यार, ये पहला बार कुछ सुना तो था मैंने, आज समझ में आ रहा है कि ये क्या है। एनी हाउ, तो आर जो है बेटा, ये आर डी पे डिपेंड करता है। डी क्या है, उधर लिखा हुआ है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, इंटर न्यूक्लियर। और ये डी नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे डिपेंड करता है। बॉन्डिंग इतना सारा मैंने लिस्ट लगा दिया, देखो और क्या चीज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, ये नेचर ऑफ बॉन्डिंग पे तुम करेगा ही, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे भी डिपेंड करता है बच्चों, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ये हुआ नेचर ऑफ बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड, अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो कितना सारा कोवेलेंट बॉन्ड है, मतलब नंबर पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स पे, नंबर ऑफ बॉन्ड्स। अच्छा, टेक्निकल नेम ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स को हम बताएं क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड्स, स्टाइलिश नेम। किसी को पूछ लीजिएगा ना कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना है, तो छोटा मोटा जो स्टूडेंट रहेगा वो बता देगा, लेकिन when you will ask in a stylish way what is the multiplicity in this molecule, तो उसका पूरा सिटी बिट्टी गुम हो जाएगा। तो इसलिए धीरे धीरे आपको स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी में जाना है बेटा, स्टैंडर्ड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। सो नंबर ऑफ बॉन्ड्स मीन मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड, मतलब एक है, देखिए मल्टीप्लिसिटी ऑफ बॉन्ड का मतलब जैसे एक एटम है तो इसके बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये डैश का मतलब बॉन्ड होता है, ये सब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको। यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है,
तो इनको कहते हैं मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो दिस इज नॉन एज मल्टीप्लिसिटी। तो इन पे भी एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है, एटॉमिक रेडियस डिपेंड करता है। ओके नेक्स्ट, और किस पे डिपेंड करता है बेटा? तो मैं और एक कलर इस्तेमाल कर रहा हूं, ये ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। मैं इधर लिख देता हूं ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी डिपेंड करता है। अच्छा, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है तो मैं आपको बताऊंगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, नेट जो चार्ज, मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टीज में लिखा हुआ है एवरीथिंग। बैकग्राउंड नॉइज को कंट्रोल करो, ऑक्सीडेशन नंबर, एवरीथिंग लिखते जाइए। अरे बाबा, हाँ तो थोड़ा साइलेंस मेंटेन कर लो बेटा। ठीक है, ओके। ऑक्सीडेशन स्टेट पे करेगा। इतना ही नहीं, वो कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी डिपेंड करेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर पे। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको समझ में आ रहा है? कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? हेलो आस्था, यस सर। कोऑर्डिनेशन नंबर सर का मतलब, हाँ मैं बता देता नहीं हूँ। पता। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा काम है बताना, आपका खाली काम है पूछना अपना डाउट। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जैसे देखो, अगर H2O है ना, H2O, तो इसमें O के इधर में एक H है, एक H है, तो मैं अगर बोलूं कि ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, इसको कितने एटम ने घेर रखा है? सर हाइड्रोजन 2। कितने कितने, कौन किसने घेर रखा नहीं पूछा मैंने, क्वालिटी नहीं पूछा है मैंने, क्वांटिटी पूछा है, कितने लोगों ने घेर रखा है? सर 2। दो। बेटा इसी का स्टाइलिश नाम है कोऑर्डिनेशन नंबर। मैंने कहा ना, स्टाइल में केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री में स्टाइल एकदम। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हुआ? नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ओके, नंबर ऑफ सराउंडिंग एटम, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हो गया कि नहीं? यस सर। जैसे मान लेते हैं SF6 लिखते हैं, SF6, इसका मतलब बीच में सल्फर एटम है और 1 2 3 4 5 6। अब तो बताओ जो S है वो तो बताओ, जो S है। हेलो, यस सर। तो सल्फर का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? कितने लोगों ने घेर रखा है? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया। समझ में आ गया बेटा? हेलो, यस सर। हाँ ठीक है, तो इन कोऑर्डिनेशन नंबर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इतना ही नहीं, बॉन्ड के कैरेक्टर पे भी डिपेंड करता है। तो बॉन्ड का कैरेक्टर तो मैं ऑलरेडी, बॉन्ड कैरेक्टर, तो बॉन्ड कैरेक्टर तो मैंने यहाँ पर दिखा दिया ऑलरेडी, नेचर ऑफ बॉन्डिंग। ओके, तो दोबारा इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो इन पे डिपेंड करता है। बढ़ू आगे बेटा? हेलो यस आस्था, सर। यस सर। हाँ ये सबको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट बना लेना। मैं एक एक चीज, अब जब समय आएगा तो सब चीज को, जो जो मैं लिखते जा रहा हूँ सबको दोबारा खोलूंगा, एक एक पॉइंट्स को। तो अब मैं लिख रहा हूं, इतना सारा चीज ठीक है। ओके, सो जनरली बहुत सारा एटॉमिक रेडियस हो सकता है, लेकिन हम लोग को जो यूज में आता है, डेली यूज में जो हम आर यूज करते हैं बेटा, आर मतलब एटॉमिक रेडियस। ओके, सो डेली यूज में जो आर यस यूज सर। होता है, हाँ डेली यूज में, डेली यूज, बात समझ में आई? ये कैसा कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। रेस्टोरेंट में हम जाएंगे, वो लोग मेनू कार्ड देता है, तो खाने का वेराइटीज लगभग कितना होता होगा बताओ तो? अच्छा सा रेस्टोरेंट में जाएंगे तो जरूरत से भी ज्यादा। कितना से ज्यादा?
100, 150 ऐसा नहीं सर लिखे रहता है। जरूरत से भी ज्यादा। जरूरत से भी ज्यादा क्या क्या आइटम लिखे रहता है वह, इसी को यही है मेनू। ये है मेरे होटल का मेनू। समझ में आई बात? ओके। लेकिन हम लोग डेली लाइफ में सरवाइव करने के लिए क्या करते हैं? रेस्टोरेंट तो चलो कभी अल्टरनेटिव वीकली गए, कभी गए। डेली लाइफ में हम लोग का क्या यूज होता है खाने में, बताओ बेटा? राइस यूज करते हैं, करी यूज करते हैं, बिरयानी यूज करते हैं, ये वगैरह वगैरह, ये जो कुछ 8-10 आइटम डेली यूज करते हैं। समझ में आई बात? यस सर। मेरा मेरा Can I have a cup of tea? सो डेली लाइफ में जो हम लोग रेडियस का यूज करेंगे बेटा, वो है, मैं लिख देता हूं, ठीक है? वो है, एक का नाम है क्रिस्टल रेडियस। अच्छा, क्रिस्टल रेडियस थोड़ा हाईफाई वर्ड हो गया, तो इसी को बगल में लिख लो, मेटेलिक रेडियस। मेटेलिक रेडियस कहां पर? ये देखो मैंने यहां पर लिखाया था मेटेलिक। स्क्रीन नजर आ रहा ना बेटा क्लियरली? मेटालिक बॉन्ड है सर। हाँ, मेटेलिक बॉन्ड है, तभी तो वहां से जो रेडियस निकलेगा, उसको हम कहेंगे मेटेलिक रेडियस। समझ में आई बात? हाँ सर। थोड़ा स्पीकर के सामने आओ। जी सर। ओके, नेक्स्ट है, और ये भी जानना है, क्रिस्टल रेडियस और मेटेलिक रेडियस दोनों सेम है। एक और रेडियस आपके सामने आएगा, और वो है वांडरवाल रेडियस। ये कहां से आएगा? जब दो एटम के बीच में कौन सा बॉन्ड बने रहेगा? वांडरवाल्स बॉन्ड। अब ये वांडरवाल बॉन्ड्स क्या है, मेटेलिक बॉन्ड क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, समय आने दो बेटा, मैं एक एक चीज समझा दूंगा। ठीक है, ओके। फिर एक कौन सा होता मालूम है? एक होता है कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस, ओके। और टाइम हो जाने से मेरे को बता देना कोवेलेंट रेडियस, ठीक है? तो अब देखो, अब फिर मेरे पास एक याद आ गया, ये तो आर है, लेकिन अब हम यहां पर ऐसा करते हैं, आर के नीचे क्या लिख दें? आर के नीचे क्या लिख दें? बोलो, मेटेलिक रेडियस का सिंबल क्या लिख दें? ठीक है बेटा, क्या लिख दे बोलो तो? आर के नीचे मेटेलिक लिख दे, एम। ओके, आर एम का फुल फॉर्म बोलो। मेटालिक रेडियस। अच्छा, यहाँ आर लिखकर क्या लिख देते हैं? VAND अच्छा, की तरह वैंड कर देते हैं खाली। पढ़ो इसको, क्या पढ़ेंगे? आरवैंड। हाँ, आरवैंड। आरवैंड का फुल फॉर्म बोलो। लिखेंगे शॉर्टकट, लेकिन एक चीज बहुत खतरनाक है केमिस्ट्री में, जब पढ़ना होगा तो पूरा पढ़ेंगे। वेंडेबल्स रेडियस। या, अब समझ में है बात, अब समझ में आ गया। लिखेंगे आरवैंड, लेकिन अगर पढ़ना होगा तो पढ़ेंगे वांडरवाल्स रेडियस, वांडरवाल रेडियस, नॉट रेडियसन, वांडरवाल रेडियस। आई बात समझ में? हाँ यस सर। हाँ, ये एक खतरनाक चीज है केमिस्ट्री में, कोवेलेंट रेडियस। तो आर लिखकर सीधा क्या लिख दे? COV। ओके बेटा, हेलो? कोवेलेंट रेडियस। हाँ, यस, ऐसा। तो ऐसा याद रखना पड़ेगा। आपकी मर्जी, आपको अगर पूरा कोवेलेंट लिखना, अगर आपके पास समय है तो पूरा कोवेलेंट लिख दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा वांडरवाल्स लिख दो, पूरा मेटेलिक लिख दो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, मैं तो बोल रहा हूं यहाँ V एंड की जगह खाली V लिखो, और COV की जगह खाली क्या लिखो? C लिखो। हम तो उसमें भी खुश है। चलो, एनी हाउ, बढ़ जाए बेटा। अब इससे एक चीज समझ में आता है, हर मेटेलिक रेडियस एक रेडियस है। हर मेटेलिक रेडियस एटॉमिक रेडियस है बेटा। यस सर। लेकिन हर एटॉमिक रेडियस मेटेलिक रेडियस नहीं है।
हर वांडरवाल रेडियस एटॉमिक रेडियस है, लेकिन हर एटॉमिक रेडियस वांडरवाल रेडियस नहीं है। हर कोवेलेंट रेडियस एटॉमिक रेडियस है, लेकिन हर एटॉमिक रेडियस कोवेलेंट रेडियस नहीं है। बात समझ में आ गई? हाँ जी Yes, सर। sir. ओके, ये बात समझ में आया मैंने क्या कहा? जैसे मैं कहूं हर लड़का एक इंसान है, समझ में आई बात? Yes, sir. ठीक है, लेकिन क्या हर इंसान लड़का है? नहीं सर। No. उसमें गर्ल्स भी आती हैं, उसमें बुजुर्ग भी आते हैं, उसमें, तो कहने का मतलब ये है कि मतलब क्लियरली समझना पड़ेगा। तो आर एक बहुत बड़ा नाम है और ये उसका क्लासिफाइड है, मतलब समझ गए बात को? तो इस तरह से Yes. क्वेश्चन ऑप्शन घुमा घुमा के कैसे भी दे दे, चाहे आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हो, इंजीनियरिंग का कर रहे हो, सीबीएसई का कर रहे हो, या और कोई आगे आईएएस आईपीएस कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज का कंपटीशन का तैयारी कर रहे हो, या कुछ भी बड़ा इंसान बनने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है, ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, एक बड़े इंसान तो बनोगे। बड़े इंसान बनोगे तो बड़ा नॉलेज तो होना होगा आपको, अच्छा इंसान बनने के लिए इस तरह से नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ये नॉलेज मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। सवाल है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है बेटा? मीटर, सेंटीमीटर, यही सब होता है। तो यार ये सब बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो इसको हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ लिख देते हैं कि आर, ओके, को आर को हम लोग कैसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आर कैन बी एक्सप्रेस इन, मालूम है, एंगस्ट्रॉम, कैन बी एंगस्ट्रॉम, आर एक्सप्रेस। बड़े बड़े यूनिट्स सर, वो सब बड़े बड़े डिस्टेंस के लिए लगता है। कौन कौन? मीटर, सेंटीमीटर, ये सब ना? हाँ। हाँ, लेकिन एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम मालूम है? एंगस्ट्रॉम का शॉर्ट फॉर्म होता है ए नॉट। हाँ, ए नॉट। ठीक है, अच्छा, ए नॉट कितना होता है मालूम है? 1 ए नॉट इज इक्वल टू, ये सब वैल्यू याद कर लो आप। 10 रेस टू 9 नहीं, हाँ 10 रेस टू -10 मीटर। तो देखिए दे दिया ना मैंने, मीटर में आंसर दे दिया कि नहीं दे दिया? यस सर। तब तो बेसिक यूनिट का भी सहारा ले लिया मैंने। और क्या चीज में यूज कर सकते हैं मालूम है? नैनोमीटर। नैनोमीटर। नैनोमीटर, नैनो नाम तो सुना ही होगा आपने, एक नैनो कार निकला था, कार है भी, अभी भी मार्केट में है, और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है मालूम है? NM। दिस नैनोमीटर इज नॉट रिलेटेड विथ नैनो कार, ओके। नैनोमीटर, आपको मालूम है एक नैनोमीटर कितना के बराबर होता है? 10⁻⁹ मीटर। ओके बेटा, यस सर। ये सब आपको क्या करना पड़ेगा? अब याद करना पड़ेगा। कर लेना याद, डेली डेली यूज करते करते याद। मालूम है आपको, रेस्टोरेंट जाते हैं 100 से भी ज्यादा खाने का आइटम रहता है कि नहीं? हाँ सर। लेकिन यस मालूम है सर। जो उसके अंदर जो वेटर रहता है, वेटर रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि वेटर ने सारा नाम याद किया, मालूम है डेली यूज करते जाता बस। आप जैसे ही वहां रेस्टोरेंट में बैठोगे, आएगा एकदम ऐसा करके, ऊपर में एक रुमाल रखे रहेगा टॉवेल जैसा, और सीधा चालू हो जाएगा, पूरा जो मेनू में लिखा रहेगा वो पूरा जुबान में, आइए बिरयानी, चिकन बिरयानी, क्या क्या बकते रहेगा, सोचो उसको सारा याद रहेगा। क्यों? क्या वो याद किया है? नो, डेली यूज करते करते वो याद हो जाता है। जैसे मेरे को याद हो गया है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनाडियम, क्रोमियम, मैग्नीफेरिक, फेरिक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, गैलेनियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम, ऐसा करके पूरा याद हो गया मेरे। समझ गए बात को? हेलो यस बेटा, सर। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं, आप डेली यूज करते जाओ, वो दिमाग में बैठते जाएगा। ओके, तो नैनोमीटर हो गया। पिकोमीटर, पिकोमीटर, पिकोमीटर मतलब PM, स्मॉल PM, पिकोमीटर। तो 1 पिकोमीटर हो जाता है 10⁻⁻12 मीटर, जहां तक मेरे को मालूम है, ठीक है, 1 पिकोमीटर, ओके।
समझ में आई बात? Yes, हेलो sir. बेटा, अब एक काम आप कर छोड़ते हैं, कितना बजा पहले तो ये बता दो मेरे को टाइम। 18 हाँ? 18 कितना मिनट बाकी है? 15? नहीं Sir. 13 हो गया। अच्छा हो गया, अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके। तो हमको ये बताओ, एक एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू कितना नैनोमीटर के बराबर होगा? कितना नैनोमीटर के बराबर होगा? One कितना नैनो, angstrom 10 is to 10. अच्छा. कितना Nanometer. पिकोमीटर के बराबर होगा? 10⁻⁻1 करें या 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू, देखते हैं एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं, 10⁻⁻1 एंड 10⁻⁹। तो ये 10 हो गया कि नहीं? 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? 10⁻⁻10 मीटर। समझ में आई बात? Yes. पिकोमीटर कितना होगा? पिकोमीटर तो ऐसा करें 10⁻² पिकोमीटर, ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 10⁻² है और पिकोमीटर का मतलब 10⁻⁻12 मीटर। तो देखो ये -12 है, ये +2 है, तो कटेगा कि नहीं कटेगा? Hmm. आई बात समझ में? हेलो बेटा, हाँ सर। कोई दिक्कत है? हेलो, नहीं सर। हाँ ठीक है। तो आज हम लोग ऐसा करते हैं, यहीं तक रुकते हैं। आज हम लोगों ने फैक्टर्स देखा, उसका यूनिट्स देखा, ओके। इसको ऐसा भी खोल सकते हैं, आर इज एक्सप्रेस दूसरे टर्म में यूनिट, यूनिट्स ऑफ आर। एक एक चीज को पता नहीं क्या क्या चीज से जान सकते हैं, एनी हाउ। तो बेटा ये सब चीज है, ये सबको नोट डाउन अच्छा से करके रखना। अच्छा से आप नोट्स बनाने लग जाना बेटा, एकदम अच्छा सा नोट्स बनाना, ठीक है? ठीक है। ठीक है। और ठीक है. ठीक है, ये इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप शेयर करिएगा, ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए अगर नहीं हुए तो। चलो बाय बाय, नेक्स्ट टाइम इस आगे और क्या जानकारी है वो आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? ठीक है, तो